Recording in progress. Okay, so hopefully the audio is proper. Let's get started. So this entire session is all about implementation. So I recommend you to join through the laptop so that the sheet I'll be sharing, the concept I'll be sharing, you'll be putting at one place. So you can sit with me the way I'm sitting right now for last maybe for 45 to 1 hour, and let's implement the system in our business to get more and more referral sales. Okay, so to start with, what is the goal? What we are trying to achieve is, first and foremost, this entire process need to have a conclusion, right? So whatever activity we are doing, we are making sure that at least we get our first 3 lakh in referral sales, so that we understand the process. Once your process is implemented, that 3 lakh is very important. Okay, so once you get that, we'll be sharing a link. You can fill the form and you will be getting an award from us that is called referral star. That's a type of token which symbolize that, okay, you know how to generate referral sales. Okay, but we are not going to stop there. After that, okay, before that, let me share this thing, award wala. Okay, so the next milestone will be, as you've set all the systems, all the missions which I'll be explaining you today. After setting all this thing, getting 3 lakhs in referral sales is very, very easy, because we are into B2B business. The volume is less, the volume is more, the contract price are more. It's very easy to get 3 lakhs. Okay. After that, we'll aim for 1 crore. 1 crore in referral sales, referral and word of mouth sales. Okay. There will be distributing an award which we have recently decided, that's called referral champion. That you are champion in generating referrals. आपको पता है referral generate कैसे करना है, right? And then comes the 10 CR, which is referral master. Now you are master in your craft. Now you can easily teach your teammates, you can easily teach your subordinates and associates how to generate referral for themselves. Okay, and then, you know, that makes you a master because you have been practicing the same thing for every month. Okay, these are the 3 things which we are planning, and it's very simple. If you are selling something for 25,000 and if you get only 12 referral sales, you can achieve this easily. If you're selling something for 50,000 and you get what we say 6 referral sales, it's very, very easy. Okay, and to achieve this thing, what we are doing is we are giving you support in the way of 2 things. Okay, we have a weekly support calls which we have recently started, which will happen every Tuesday. Okay, what happens, many people have many questions which they are not able to ask in this session because everyone is implementing. When they start implementing this business, then they have a doubt and they have to wait for the entire 1 week to get the doubt clear. So what we have planned is, every Tuesday will come online live, right? We'll have a Q&A session. We'll have a question answer session with all our members. जो भी इनको सवाल, जो भी इनको तकलीफ आ रही है implement करने में, they can ask directly, and then we'll answer that query, particular query. Then we'll have announcements. If there is an announcement for the group, you will come to know through that also. And we'll have a small training also, okay, to improve our referral sales process and other things. Then we have a referral sales workshop. This is the place where all the action happens. Every Thursday we have this, and it's all about implementation. It's all about implementation. No knowledge sharing, nothing, no networking, only sitting with your system and implementing in your business. And this process we repeat every quarter. So there are total 10 missions. I'll be explaining all the 10 missions, like from mission number 1 to mission number 10, and we'll repeat this every single quarter. So April, May, June, then July, August, September, and that's how it goes to all the 4 quarters of the year. Okay, so you also get the benefit of compounding. Post this, let's see what all our missions are. Like, why we call it as a mission? Because it's a step-by-step approach. You do one thing, then you jump to another, then you jump to another, and that's how you complete all the process. And automatically your business has a referral sales system, and you start generating referrals for your business. Okay, it's more like a mission board where we sit and we implement. First mission, as many people have the doubt and few new members have joined, so we'll be starting from the start. That is, know your numbers. Today we'll talk about know your numbers. Okay, I'll explain what exactly it is. Then mission number 2 will be all about building your ideal client list. Okay, exactly who are the people you want to serve. It looks very clear, but when we sit and do it,
many doubts comes, and you'll have clarity exactly to whom you have to go after. You don't have to waste your time networking or meeting people who are not much relevant to you. It all depends on what stage you are. And you will also build a list of dream 100 clients. 100 ऐसे क्लाइंट जिनके साथ आपको काम करना है, वो आपके पास शायद आए या ना आए, उसके पहले आप उन तक कैसे पहुंचे, रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू. दैट वी विल डू इन द मिशन नंबर 2, and I'll show the process what I follow. Okay. Mission number 3 is about building trust. I got a message from someone who recently joined the group. We had a chat, a quick chat, and then he directly said that, okay, be my partner. I'll give you 2%, 5%, something. He said, he was into retail business as a commission. It's so easy to give offers. It's so easy to approach people, but people will not even consider you unless and until they have a trust in you. Okay, so it's very important. What you are saying is separate. What others are saying about you, what's the perception in the market, that's very important. So we'll create that trust in the market over a period of time, so that people start trusting you. अभी आपका ऑनलाइन रिव्यू क्या है, लोग आपको कैसे परस्यू कर रहे हैं, आपको आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप तो अच्छा ही बोलोगे, मैं भी अच्छा बोलूंगा अपने बिजनेस के बारे में, बट दैट इज वेयर trust deficit is. People don't trust each other, because of lack of reviews, lack of case studies, lack of demos, lack of proof, and there are multiple things. So we'll fix this in our business, and it's different for different businesses. Then we'll talk about mission number 4. Mission number 4 is all about nurturing system. ये बहुत ही पावरफुल है. हम सब B2B बिजनेस में हैं, जहां पे एक बिजनेस के साथ हम लाइफ टाइम तो रिलेशनशिप बना के अपना बिजनेस कर सकते हैं. तो जब तक आप लोगों को नर्चर नहीं करोगे, जैसे आई हैव फ्रेंड्स हु गेट लीड्स फ्रॉम इंडिया मार्ट, जस्ट डायल. लीड आता है, कॉल करते हैं, यस नो हुआ, 90%, 95% होता है, क्वालिटी लीड अच्छी नहीं है या दूसरा कुछ इश्यू है, दे हैव ऑलरेडी टेकन समवन सर्विस, एंड दे फॉरगेट दैट लीड. दे डोंट नर्चर दैट लीड कि आगे चल के जो बंदे को आपको सर्विस लग रही है, मे बी आगे चल के वो वापस उसको लगेगा उस तरह का वेंडर, ही कैन call you, or maybe he can refer someone in his circle, right? And what I've also seen that for last 1 year I've been running this referral business club, right? Free of cost, no charges. Recently I started taking some token amount to bring more serious people in the group. What I've observed that in the last 1 year, almost 300 plus people came, and very few people have proved that, okay, all the 300 people are added to their contact. 300 लोगों को एक साल में मिलना is a big thing, okay? And these are all qualified business owners. अगर ये 300 लोग हमारे पास आ जाते, हम उनको नर्चर करते, उनको बताते हम कौन है, क्या करते हैं, किस चीज में एक्सपर्ट है, they would have become your unpaid sales team. पैसे नहीं देने पड़ते उनको आपको सेल्स लाने के लिए, वो रिफर करते रहते हैं आपको, मे बी एक रिफरल, साल में 2 रिफरल, 3 रिफरल, राइट? सो नर्चरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और बहुत से बिजनेसेस में ये मिसिंग है. दैट विल फिक्स इन द मिशन नंबर 4. Mission number 5 is all about getting referrals. Okay, now it's all about getting referrals from business networking. It's not only from referral business club. If you're part of maybe BNI, some Rotary club or some other group, or you are going to conferences, events, वहाँ वो सब business networking है, right? तो वहां से आप अपने लिए referral कैसे लाएंगे, वो हम मिशन नंबर 5 में फिक्स करेंगे, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे with all the script, all the process, right? Mission number 6 will be getting referrals from social media. This is the place where you can meet people जिनको डायरेक्टली आप मिलने में बहुत समय लगेगा. ये एडवांटेज है डिजिटल मीडियम का, कि यू कैन रीच आउट, एटलीस्ट यू नो द नेम ऑफ द बिग कंपनीज, उनके डायरेक्टर्स का नाम क्या है, उनके अकाउंटेंट्स का नाम क्या है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, एंड देन इट्स बिकम वेरी इजी टू रीच आउट एंड get referral or introductions. That we are going to fix in mission number 6. Mission number 7 will be, and this will happen every week, okay? In case you miss it, recording will be there, but I recommend attend live so that you can implement. It's very important, okay? Mission number 7 will be getting referral from your existing client. Many people ignore this, but these are the people who are going to give you the maximum referral. Forget about others. If you ignore your existing client, your retention will go down, your referral word of mouth will go down. So it's very important. You should have a process.
right, where you continuously get referrals from your existing client. The mission number 8 will be getting referral from partnerships, collaboration, you can call it referral partners. ऐसे बिजनेस के साथ हम जुड़ेंगे जो नॉन कॉम्पिटिंग है और जो हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस दे रहे हैं, right? We'll do this in mission number 8. Mission number 9 will have a thank you and follow up system. कितने लोगों को लगता है कि उनके पास फॉलो अप सिस्टम की कमी है? कई बार आपने किसी के साथ मीटिंग फिक्स किया और आप भूल गए, आपने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। कई बार आपने यू नो किसी किसी लीड के साथ एक बार या दो बार फॉलो अप किया, पर आपको लगता है कि और फॉलो अप अगर मैंने किया होता तो वो क्लाइंट क्लोज हो जाता। जस्ट टाइप यस इन द चैट अगर ऐसा आपके साथ हुआ है पहले। अगर आपने किसी को टाइम दिया है और आपने किसी को कोई लीड आया है, कोई क्लाइंट आया है जिसने कोटेशन आपसे लिया है, कोटेशन के बाद आपने एक फॉलोअप किया, सर क्या हुआ कोटेशन का, फिर दो हुआ, दो बार फॉलोअप किया, बाद में आपने छोड़ दिया। हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, हमको एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत नहीं है, पर एक्चुअल फैक्ट वैसा नहीं है। फैक्ट ये है कि सामने जो इंसान है वो भी शायद बिजी है किसी काम में, मे बी ही इज ऑल्सो कंफ्यूज, ही वांट्स सम मोर इन्फॉर्मेशन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। उसको प्रॉब्लम है इसलिए उसने रेज हैंड किया है इंक्वायरी करके। नाउ ही वांट सोल्यूशन, मे बी नॉट फ्रॉम यू, समवन एल्स, मे बी ही डजंट ट्रस्ट यू, उसको अर्जेंसी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बट इफ यू स्टॉप फॉलोइंग फॉलोइंग अप, देन इट विल नॉट वर्क। ये करने के लिए आपको एफर्ट नहीं डालना है, एक बिजनेस में प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है ताकि आप बिजनेस में रहे ना रहे आपको एग्जैक्टली पता रहे कि ये फॉलो करना है। आप कहीं छुट्टी पे चले गए, कहीं दूसरे कॉन्फ्रेंस में चले गए, कोई दूसरा बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, in that business you will have a proper follow up and thank you system. Thank you system is for your partners, referral partners, जिन्होंने आपको बिजनेस दिया है, जिन्होंने आपको रेफरल दिया है, right? You should have that thank you system so that they find that okay, you respect their work, and continuously they start sending you leads. Okay, to give you a case study, we have a member called Kumar S. We all know he is into recruitment. Now he is planning to expand into some other services. So he wanted to connect with a consultant. He called me, I connected with the consultant, and that consultant is my partner. Partner in the sense referral partner. I refer him, he refers me. Right. So after I send him the lead that okay, the person called Kumar is want to connect with you, he sent me a thank you note, and then we had a other discussion about our previous leads. So that is the system which we have implemented. Okay, you have to do it in your business. Mission number 10, which is very very critical. हम B2B business में है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, everything closes in a one-to-one call. वी आर नॉट अ ई-कॉमर्स और D2C ब्रांड जहाँ पे क्लिक करके कोई पे कर देगा, आपको सिर्फ शिपमेंट कर देना है, डिलीवर कर देना है, राइट? अगर आप रिटेल में भी हैं, छोटे मोटे सामान भी बेच रहे हैं, तो आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, आपको अगर एसोसिएट्स बनाने हैं, तो भी आपको वन टू वन करना पड़ेगा। जब हमारा काम वन टू वन करके ही होगा, वाई नॉट परफेक्ट दैट सिस्टम, वाई नॉट हैव अ प्रोसेस, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द वन टू वन, कि 1 घंटा बात करके हमारा काम हो जाए, इंप्रेशन अच्छा हमारा वहां पे सेट हो जाए, राइट? कई बार होता है कि वी टॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, बट कोई आउटकम नहीं निकलता उसका, कोई मीटिंग का आउटकम नहीं होता, और वी हैव अ स्मॉल इंटरेक्शन विद 5 मिनट्स और 10 मिनट्स विद द प्रोस्पेक्ट्स, बट देयर इज नो आउटकम, कोई सेकंड मीटिंग शेड्यूल नहीं होता। तो वन टू वन क्लोजिंग सिस्टम पे हम ध्यान देंगे ताकि मोर एंड मोर बिजनेस वी कैन क्लोज, यू नो which comes through referral and word of mouth. Okay, we are clear till here. Just type clear in the chat so we can move forward in today's session. Just type clear in the chat. Thank you. Okay, mission number 1 is know your numbers, right? As I posted in the group also, in the Shark Tank, you will see that investors ask some critical questions कि आपका sales कितना है पिछले साल का, इस साल का प्रोजेक्टेड सेल कितना है, पिछले महीने का सेल्स कितना है, उसका ब्रेकअप क्या है। ये नंबर्स जो है वो क्रिटिकल है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट? फॉर रेफरल बिजनेस पर्पस देयर आर सम डिफरेंट नंबर्स व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन। नंबर्स लाइक टोटल नेटवर्क यू हैव, कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं। द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क इज नॉट अबाउट आप कितने लोगों को जानते हो, राइट? पीपल
who know you? कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं आपके नाम से, आपके फेस से, आपके ब्रांड से? दीज आर योर नेटवर्क, जिनको आप कॉल करोगे देन दे विल रिस्पॉन्ड और दे विल अलाउ यू टू मीट. These are not unknown people. So you should know the total number of network you have, so that when you do all this activity आपका नेटवर्क बढ़ना चाहिए. वो मैं आपको अभी शीट में बताऊंगा कैसे करना है. The total number of meetings required, कितनी मीटिंग्स आपको करनी है. बिकॉज एज अ सेड, आपका बिजनेस कब होगा? जब वन टू वन मीटिंग होगा. आप किसी भी बिजनेस में है, जब तक वन टू वन मीटिंग्स नहीं होगा आपका बिजनेस क्लोज होना मुश्किल है. तो इस केस में अगर आप पूरे महीने में आप 5 मीटिंग कर रहे हो कंपेयर टू 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 50 मीटिंग कर रहे हो, टीम के साथ मिलके 100, 150, 300 मीटिंग्स कर रहे हो, तो आपका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. तो ये मीटिंग्स के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टाफ को भी पूछना है कितनी मीटिंग्स हुई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इनटू रियल एस्टेट एंड आपको इंक्वायरीज आती है एंड यू आर काउंटिंग ऑल द इंक्वायरीज, लीड्स. इसका वैल्यू क्या है? कुछ वैल्यू नहीं है जब तक वो लीड आपका ऑफिस में नहीं आता या लीड आपका साइट पे नहीं जाता फ्लैट विजिट करने के लिए. तो वहां पे मीटिंग्स मतलब, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रियल एस्टेट, इट्स लाइक विजिट. कितनी विजिट्स होनी चाहिए, महीने में कितना विजिट्स होना चाहिए. बाकी जितने भी पैरामीटर्स है सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए, लीड्स वगैरह सब भूल जाइए. एक बार वो लीड आ गया, आपने उसको नर्चर किया, हमारे सिस्टम, जो सिस्टम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वापस आएगा आपके पास. बट मेक श्योर दैट विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम गोज विद अदर बिजनेसेस, you can follow up like that. टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना आप कर रहे हो. इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ रिफरल्स. आप जब मीटिंग कर रहे हो उसके बाद आपको रिफरल कितना मिल रहा है, हाउ रिफरेबल यू आर एंड हाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि आप इनसे बात कर लो, इनसे डील कर लो. वो रिकॉर्ड होना भी जरूरी है. टोटल नंबर ऑफ रिफरल, ये 3 चीज पे ध्यान दीजिए आप. ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा आप सही दिशा में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो. ये चीज, सिर्फ 3 चीज पे ध्यान देना. ओके. और इसी के ऊपर हम अपना खुद का प्लान बनाएंगे. जैसे मैंने कहा, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूंगा, एक्सेल शीट. आपको उसको अब बैठे बैठे जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग अलॉन्ग विथ मी, सो दैट एंड ऑफ द सेशन आपका खुद का रिफरल के थ्रू सेल्स कैसे आएगा उसकी क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए आज पूरी मीटिंग खत्म होने से पहले. राइट. एंड लेट मी शेयर द वर्कशीट विथ यू. इसको साथ में फिल करेंगे हम. एंड आई ऑल्सो गिव यू अ कॉपी ऑफ दिस. इसको हमने पहले भी फिल किया है पर इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा व्हाट वी से कॉलम्स डाले हैं. अगर आपने पहले भी किया है तो यू कैन डू इट वंस अगेन सो दैट यू हैव मच बेटर क्लैरिटी. ओके. लेट मी शेयर दिस इन द चैट. आप इसको सेव कर लीजिए. Just let me know if you are able to copy this. Okay. Just confirm if you can make a copy of this. Okay. So let's get started. Ready to go? Just type yes in the chat अगर आपने इसका कॉपी बना लिया है तो. एज अ सेट, दीज आर ऑल एक्सेल नंबर्स. आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं, बहुत सेल्स भी कर सकते हैं. इंटेंशन ये है क्लैरिटी के लिए. इट्स नॉट लाइक जो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे एग्जैक्टली वही आपके बिजनेस में होगा. बिजनेस मल्टीपल डायनेमिक्स से बना होता है. बाहरी चीजें होती हैं, सीजनल चीजें होती हैं बिजनेसेस में, और बाकी सारी चीजें. पर कुछ नंबर्स यहाँ पे डालने से विल हैव अ क्लैरिटी कि हम किस डायरेक्शन में हैं और कहाँ पे जा रहे हैं. राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला नंबर आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है. आपका करंट ईयरली सेल्स कितना है. इफ यू आर मेकिंग 20 लाख रुपीज और आप सीधे एम करेंगे 5 करोड़, यू शुड हैव अ सॉलिड प्लान. अगर है तो अच्छी बात है. अदरवाइज फ्रॉम 20 यू कैन, इफ यू वांट टू ग्रो टू 50 lakhs, फ्रॉम 50 यू वांट टू ग्रो टू
1 crore, you should have a very smart goal जहाँ पे आप अचीव कर सके उसको, unless until you have a different type of plan and to execute. Okay, so what you'll do is you'll put your current sales here. For example, my current sales is 50 lakhs per year. Is how much? It's 50 lakhs. Okay, no, I'm not able to get it. Let me just check. Wait a minute. Here we go. Okay, it's how much? It's 50 lakhs per year. Now my next sales target for the coming financial year is 75 lakhs. कि मेरा 50 लाख का सेल है अभी तक, अब मुझे अभी 75 लाख बनाना है नए साल, राइट? मेरा एवरेज, एक्चुअल एवरेज मेरा बिलिंग है पूरे साल का ऑन एन एवरेज 60,000, जो मेरा स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, जो मैं सर्विस देता हूँ, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन इज, आपने पहले डाल दिया कि मेरा एक्चुअल सेल्स अभी कितना है, मुझे कितना बनाना है, 25 लाख और ऐड करने हैं, 60,000 इज माय ईयरली बिलिंग, सो मुझे 25 नए क्लाइंट ऐड करने पड़ेंगे, ओनली 25 क्लाइंट्स पूरे साल में। 25 क्लाइंट्स मुझे 60,000 देंगे, 75 लैक्स मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, राइट? उसके बाद सेकंड रेशियो देखना है कि आप देखिए कि जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि क्लोजर कितना होता है, यानी कि 10 मीटिंग आपने किया, 10 में से क्या आप 2 मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, 5 मीटिंग कर रहे हैं, कि 10 में से 10 मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, राइट? एंड जब आपके साथ कोई टीम भी जुड़ रहा है, मतलब आपने सेल्स टीम भी रखा है, वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, उनका परसेंटेज भी देखिए कि 10 मीटिंग में से ऑन एन एवरेज, जस्ट एज्यूम बिफोर राइट नाउ यू मे बी यू हैव नॉट रिटन समवेयर इन द सिस्टम, उनका क्लोजर कितना है, 10 मीटिंग में से कितने मीटिंग्स क्लोज होते हैं। मैं यहाँ से एकदम कंजर्वेटिव लेता हूँ, जो है 20%। इसका मतलब 10 मीटिंग मैंने किया तो 2 मीटिंग्स मेरे या 2 क्लाइंट्स मेरे क्लोज हो गए, वेरी सिंपल। तो ये परसेंटेज डालना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं कन्वर्जन रेट, मीटिंग टू क्लाइंट, फॉरगेट अबाउट लीड टू क्लाइंट। लीड तो बहुत आते हैं, इंक्वायरीज बहुत आते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स, उससे मतलब नहीं है, मीटिंग्स कितने लोगों से हो रही हैं, या फिर जो बोलते हैं कि फेस टू फेस या ऑनलाइन या कॉल पे मीटिंग्स, राइट? इट्स 20%। इसका मतलब यू नीड 125 रेफरल और इंट्रोडक्शन, यानी कि 125 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, राइट? कितने? 125 लोगों से मीटिंग करना है। जब 125 लोगों से मिलोगे पूरे साल में, उसमें से आपके परसेंटेज के हिसाब से यू विल इजीली क्लोज 25 पीपल, करेक्ट? ये रिवर्स कैलकुलेट हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको और इजी कर देते हैं, पूरे साल में हमें 125 लोगों से मिलना है और पूरे महीने में सिर्फ 10 लोगों से मिलना है। मिलना इन द सेंस 10 लोगों से आपको डील करना है रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। वाई रेफरल वर्ड ऑफ माउथ? आपका क्लोजर जल्दी होगा, ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होगा एंड परसेंटेज आपका हमेशा हायर साइड रहेगा। मीटिंग्स पर डे कितनी करनी है? मे बी मैक्सिमम वन मीटिंग। हर दिन आप एक मीटिंग करेंगे या हफ्ते महीने भर का टारगेट ले लीजिए, हफ्ते भर का टारगेट ले लीजिए, जो भी आपको करना है, पर पूरे महीने में आपका 10 से 15 मीटिंग होना चाहिए, तब जाके ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट? अब प्रॉब्लम आता है कि मिलेंगे किससे? हम क्या करते हैं, हम सभी से मिलते हैं। कोई भी हमारे ऑफिस में आ गया, किसी से बात होगी, आधा एक घंटा बात कर रहे हैं। एज अ बिजनेस ओनर हमारा टाइम लिमिटेड है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आप अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, मीट विथ एनी वन एंड एवरी वन, सभी से मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट एक्सपांडिंग योर नेटवर्क। आप अपनी रीच बढ़ा रहे हो, आप सभी से मिल सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, सभी से मिलिए। बट वंस यू वांट टू गेट इनटू सीरियस बिजनेस, आप 2-3 साल एक बिजनेस में हो चुके हो और भी आप एक्सपीरियंस हो चुका है, नाउ यू हैव टू यूज योर टाइम वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड डू स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। ऐसे लोगों से मिलो जो डायरेक्टली आपके क्लाइंट बन सकते हैं, या ऐसे लोगों से मिलो जिनके थ्रू आपके क्लाइंट बन सकते हैं। जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, ये 2 चीजें। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे आप फोकस करना चाहते हैं सिर्फ सेल्स पे, क्लोजर पे और बिजनेस एक्सपांशन में, आपको 2 लोगों से मिलना है, 2 लोगों पे फोकस रखना है। एक, कैसे भी करके, जो मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे होगा वो, आइडियल क्लाइंट जो है आपका, जिससे आपको बिजनेस आने वाला है, जो आपके लिए चेक साइन करेगा, उससे मिलना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ नेटवर्किंग करना है, ना कि किसी और के साथ जहां पे कोई सेल्स आने के चांस नहीं है। सेकंड, ऐसे बिजनेसेस के साथ जिनके थ्रू आपको क्लाइंट मिलेगा,
डायरेक्टली वो आपके क्लाइंट नहीं है, पर उनके थ्रू आपको क्लाइंट में भी, वेंडर्स कहीं ना कहीं से में भी, एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, राइट। जब ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, ऐसे लोगों से आपका उठना बैठना होगा, तो ऑटोमेटिकली आप ये जो आपका टारगेट है मीटिंग का, इजीली हो जाएगा। इस चीज को फिल भी करते हैं। ओके, लेट्स फिल दिस आउट। इफ यू कैन टाइप योर बिजनेस कैटेगरी, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके इसको फिल करेंगे साथ में, एंड बाकी लोग जो है वो वहां पे सजेशन देंगे अपने कि कौन 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 हो सकते हैं आइडियल क्लाइंट्स। जस्ट टाइप योर बिजनेस कैटेगरी। ओके, कंसल्टेंसी, ओके, HR सर्विसेज, what else, just keep typing your business category। सिक्योरिटी सर्विसेज है हमारे पास, कस्टम सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल टाइप ऑफ लाइक सर्विसेज जो हमको मिलते रहते हैं, ठीक है। ओके, let's take example of what, there are 3 4 5 रियल एस्टेट्स वालों ने रियल एस्टेट टाइप किया 5। ओके, let's take majority, let's go with the majority। ओके, let's go with the majority। so others जिनका नाम यहाँ पे नहीं आया है, what are the ideal clients for a real estate। जस्ट कीप टाइपिंग, आपके आइडियल क्लाइंट कौन है जिनके थ्रू आपको काम मिलने वाला है। जस्ट कीप टाइपिंग। इफ यू आर इनटू बंगलोज, देन यू नीड हाई नेट इंडिविजुअल, HNI। आपको HNI से काम मिलेगा, ठीक है, जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर इनटू PG सर्विसेज, मे बी उस तरह का चीज है, तो आप HR हेड से भी बात कर सकते हो, कंपनीज के HR हेड्स जो आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए रहने के लिए ये सारी चीजें देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आइडियल क्लाइंट्स कौन है आपके, शॉप ओनर्स, और रिटेल शॉप्स। तो एक बंदे का शॉप है कपड़ों का, सैलून है, दे वांट टू एक्सपांड, तो दे वांट रियल एस्टेट एजेंट टू सजेस्ट देम सम रियल गुड प्रॉपर्टीज जहाँ पे वो अपने नए चीजों को खोल सकते हैं। शॉप ओनर्स, व्हाट एल्स, जस्ट कीप टाइपिंग एवरीवन, all can participate। शॉप ओनर्स एंड बिल्डर्स, नो नो नो, नॉट बिल्डर्स, बिल्डर्स करेक्ट रहेगा। आइडियल क्लाइंट, इट्स बोथ वे ना, दे आर इनटू रियल एस्टेट, सो वो क्लाइंट लाते हैं बिल्डर्स या इसको देते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो बोथ वेज। ओके, नहीं, गार्ड सुपरवाइजर नहीं, ये आपके आइडियल क्लाइंट्स नहीं हुए, इनके में इनमें फंसोगे तो आप बिजनेस नहीं क्लोज कर पाओगे। बिकॉज दीज आर, सी आइडियल क्लाइंट्स वो होते हैं जिनके साथ मिलके आपको बिजनेस मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटीज के मैनेजर्स के साथ आप करोगे तो वहां पे वो रिफरल पार्टनर्स में आ सकते हैं। सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर्स, दे कैन बी योर रिफरल पार्टनर्स, दे कैन नॉट बी योर आइडियल क्लाइंट्स, राइट। RW प्रेसिडेंट्स भी आ सकते हैं, यस करेक्ट, यूर सेइंग, ठीक है, ये आपके रिफरल पार्टनर्स हो सकते हैं। इनके साथ आपको टाइम सेकंड प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये है जो अभी हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। बिल्डर्स, लेट्स फोकस ऑन आइडियल क्लाइंट्स जिनके साथ डायरेक्ट काम मिलेगा, वहां पे पहले फोकस करते हैं। यस, अदर्स यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड आंसर दिस। सो ओके, रिफरल पार्टनर्स में अदर एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट एजेंट्स काम ऐसे करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो अदर एजेंट्स इज अ बिग दिस थिंग, network for referral partners। Then next, who are the ideal clients for how individuals हो गए, then individuals like uh, your network, ये थोड़ा लार्जर हो गया थोड़ा सा। इसमें नेटवर्क क्यों लिखा मैंने, कि हर एक इंसान रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करता है, everyone wants home, so at least they purchase one home, then all of all your network जो भी आपके नेटवर्क में है, someday or the other they will buy home or they will rent home, that is for sure। शेल्टर में रहना है उनको,
they will buy home or rent home. If you can network with them or at a scale, तो वो या तो आपको पूछेंगे सलाह लेने के लिए कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, या तो उसमें क्या देखना चाहिए, आपके थ्रू सेल होगा, या उनके नेटवर्क में किसी को कोई बाय सेल या रेंट करना है तो देन ऑल्सो दे विल अप्रोच यू. ओके, लार्जर नेटवर्क, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, गिव मी वन मोर एग्जांपल. थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि स्कोप बढ़े. गिव मी वन मोर एग्जांपल. I'll tell you उसका second example. Start thinking as a business owners. Start thinking as a business owner. This will give you clarity. One second. Last time, okay, sharing stop हो गया, but wait a minute. Let me reshare. Okay. Let me reshare. It can also be a franchise owner, जो consultants हैं, जो franchise देते हैं, because these are the people who want to open multiple outlets in multiple cities and towns, इस तरह से, right? फ्रेंचाइज ओनर्स से आप मिल सकते हो जिनके जिनके फ्रेंचाइजेज हैं. ये लिस्ट आपको कहीं से मिल सकता है. फॉर एग्जांपल, यू आर इनटू मुंबई रियल एस्टेट, यू नो यहाँ पे कितने फ्रेंचाइजेज हैं. मे बी नेचुरल आइसक्रीम्स हैं, देर आर सो मेनी क्लाउड किचन वालों से आप बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं. दे ऑल नीड अ प्लेस टू ओपन देयर क्लाउड किचन. यू कैन फोकस एनी वन ऑफ देम. ऐसे तो बहुत अभी देखो आइडियाज आ रहे हैं. We'll restrict this to this thing. How much it is? 7 people. High net individual HR heads, यानी कि कॉर्पोरेट से हमने थोड़ा काम कर लिया, शॉप वालों से काम कर लिया, बिल्डर से डायरेक्ट काम कर लिया, अपने नेटवर्क से इंडिविजुअल से भी हमने काम कर लिया, और फ्रेंचाइज ओनर्स एंड क्लाउड की किचन फाउंडर्स, इसको मैं एक ही लेता हूँ, जो मल्टीपल आउटलेट्स ओपन करते हैं, राइट. रेस्टोरेंट वाले होते हैं, 99% रेस्टोरेंट्स क्लोज इन 1 ईयर, तो जब क्लोज करेंगे तो दूसरा आएगा वहां पे, तो उस तरह के बिजनेस में भी घुस सकते हैं. एंड दीज आर द रेफरल पार्टनर्स. हाउसिंग सोसाइटीज के मैनेजर्स, आरडब्ल्यूएस के प्रेसिडेंट will include RWS, and housing societies are more or less same, right? Other agents, and give me one more example. रियल एस्टेट वाले और किससे टाइप कर सकते हैं? इंटीरियर डिजाइनर्स, राइट. इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, और दे कैन ऑल्सो टाई अप विथ. जब भी हम घर लेते हैं तो हम किससे डील करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए और सोचिए. जैसे मैंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया था एक घर अपना रेंट पे, तो आई यूज सर्विस ऑफ नो ब्रोकर्स. सो आई कॉल देम फॉर मूवर्स एंड पैकर्स. मैंने उनके साथ डीलिंग नहीं किया था नए घर का फॉर ब्रोकरेज. नो, आई कॉल देम फॉर मूवर्स एंड पैकर्स. समवन कॉल्ड मी फ्रॉम देयर सेइंग दैट सर, आप जहां से मूव कर रहे हो उस ओनर का मुझे नंबर मिल सकता है क्या? सो यू कैन टाई अप विथ मूवर्स एंड पैकर्स. अगर कोई कहीं मूव कर रहा है तो मे बी दे आर लुकिंग फॉर सम प्रॉपर्टी, और दे हैव ऑलरेडी लुक फॉर द प्रॉपर्टी, बट यू कैन गेट द ओनर्स डेटा. तो मूवर्स एंड पैकर्स से वो बेनिफिट आ जाएगा. आप डील शायद न क्लोज कर पाओ इनिशियली, बट यू विल मेक अ डेटाबेस, बिकॉज जब कोई मूव कर रहा है तो ऑलरेडी दे हैव मेकन अ डिसीजन ऑफ, मे बी उन्होंने परचेस कर लिया है या फिर रेंट पे ले लिया है, ठीक है. बट यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा. नाउ दीज आर द पीपल जिनके साथ आपको उठना है और बैठना है, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो. बाकी जहां भी टाइम स्पेंड करेंगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माई अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट टू बी टू स्ट्रिक्ट, बट बी वेरी कॉन्शियस आप किसको हाँ बोलते हैं, किसको ना बोलते हैं. वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम इन अ डे. अगर हम बाकी लोगों से मिलने में टाइम स्पेंड करेंगे, अगर आप शुरू कर रहे हैं बिजनेस, कोई बात नहीं, राइट. यू कैन मीट एवरी वन जस्ट टू गेट नॉलेज, उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, दैट्स फाइन. बट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मोर रेफरल सेल्स, आप इनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो ये जो टारगेट्स है ये ऐसे अचीव हो जाएगा. आई थिंक यू कैन सी दैट कि अगर हम इनके साथ ज्यादा उठेंगे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली विल गेट दिस सेल्स. अब ये करना कैसे, दैट्स अनदर क्वेश्चन. और जो हम
यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। इट्स नॉट ओनली कि हमें कैसे करना है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था। ये रेफरल सेल्स इंजन का पिक्चर के थ्रू पूरा प्रेजेंटेशन है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप सिंपल से ये देखिए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक एक्सेल में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में एक सीआरएम बनाना पड़ेगा, जहां पे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक जगह पे लाके सेव करेंगे। तो बचपन से लेके आज तक, जब से आपने काम स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक जितने भी लोगों से मिले हो, एम्प्लॉइज, कलीग्स, एक्स बॉस, वेंडर्स, किसी से भी मिले हो, अदर बिजनेसेस, उन सभी का डेटाबेस आपके पास सेव होना चाहिए। डेटाबेस मीन्स नेम एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो यू कैन गैदर, नो इश्यूज, पर ये बेसिक होना चाहिए मोबाइल नंबर। नाउ दीज आर द पीपल जो आप कहीं ना कहीं मिले थे, पर आपने उनके साथ रिलेशनशिप या उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ज्यादा समय तक स्पेंड नहीं किया, यू फॉरगॉट। लेकिन आप उसको रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन सेट ऑफ नेटवर्क। जैसे आपने अपनी पहचान बनाई है मार्केट में, उन्होंने भी अगर वो जॉब कर रहे हैं तो दे हैव पहचान विद द एचआर हेड्स। अगर वो बिजनेस करें तो दे हैव देयर ओन सर्कल। यू कैन यूज दैट टू हेल्प, यू नो। सो यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा होगा छोटा सा, नर्चर करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इनके साथ हमें बिजनेस नहीं करना है, राइट। एग्जिस्टिंग क्लाइंट तो ऑलरेडी हमारा क्लाइंट है, इनको हमें पिच नहीं करना है फॉर बिजनेस। ये भाग जाएंगे सब आपके जितने भी लोग हैं, राइट। इनको नर्चर करना है, इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। फिर इनके साथ आपको मीटिंग करना है। मीटिंग ध्यान रखिए, ऑफलाइन मीटिंग कम करना है, ऑनलाइन ऑन कॉल मीटिंग ज्यादा करना है। बिकॉज मैंने जैसे कहा, इनके थ्रू बिजनेस आपको ज्यादा नहीं लाना है। तब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, बिकॉज ये लिस्ट जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तब आप कहाँ जाओगे। जैसे आपके पास, एग्जाम्पल लेते हैं, 100 लोग हैं, राइट। आपके आपके कांटेक्ट में आपने 100 लोगों को फोन किया कि एक बार पहले हालचाल लिया, फिर बोला कि हम मैं ये बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ, आपको मेरी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। आप बोलोगे नहीं। मे बी एक आदमी हाँ बोलेगा, दो आदमी हाँ बोलेगा, पर 95 पीपल विल से नो, राइट। नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट मंथ? 5 लोगों ने हाँ बोला तो आपने इंक्वायरी किया, 5 में से मे बी एक या आधा क्लोज हो गया। आफ्टर दैट व्हाट? अब लिस्ट आपका एग्जॉस्ट हो गया। अब आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, पोस्ट बनाने के लिए, लीड्स लाने के लिए, दुनिया भर के लोगों को पे करने के लिए। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सेल्फ सस्टेनेबल है। आई टेल यू हाउ। नाउ ये लिस्ट में फॉर एग्जांपल देयर आर 100 पीपल, ओके। ध्यान से देखना। अभी अपने आपके पास 100 लोगों का ही पहचान है, ज्यादा बड़ा पहचान नहीं है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं 100 पीपल से। नाउ यू स्टार्टेड मीटिंग दिस पीपल ऑन कॉल, ऑनलाइन, कुछ लोगों से ऑफलाइन मिल लिया, बेस्ड ऑन किस लेवल पे रिलेशनशिप है, राइट। एंड यू विल आस्क फॉर वन रेफरल फ्रॉम एवरी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, जस्ट टाइप आई इन द चैट, ओके, जस्ट टाइप आई इन द चैट। कितने लोग एचआर हेड को, एक भी एचआर हेड को जानते हैं? जस्ट क्विकली, विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन दिस। कितने लोग एक एचआर हेड को दूर से जानते हैं कि हाँ एक बंदा मैं जानता हूँ जो एचआर के बिजनेस में? कई लोग हैं आए, राइट। कितने लोग शॉप ओनर्स को जानते हैं? यार हमारे नीचे भी किराना स्टोर, उसको भी हम जानते हैं, और भी बहुत से शॉप ओनर्स हैं। एक दो बिल्डर को हम भी जानते हैं। just keep typing I if you know that. Do you know any cloud kitchen founder or maybe franchise owner, in case, just asking? Or do you know हाउसिंग सोसाइटी मैनेजर और चेयरमैन? दो में से एक। एक तो आपकी सोसाइटी का मैनेजर हो गया। डू यू नो रियल एस्टेट एजेंट्स? इसमें बहुत आए आ रहे हैं, राइट। मेनी पीपल नो रियल एस्टेट एजेंट, दो तीन तो सबको पता है, राइट। इंटीरियर डिजाइन, अगर आपने इंटीरियर का काम किया, मूवर्स एंड पैकर्स भी लोगों को पता होता है। तो अगर आप यहाँ पे चैट देखोगे, चैट के हिसाब से at least people know 5 to 6 people out of the 5 to 6 people out of this list। तो सबके पास 5 से 6 कॉन्टैक्ट्स हैं, पर मैं यहाँ पे एक ही ले रहा हूँ। जैसे सबके पास ऑलमोस्ट 10 कॉन्टैक्ट होगा सर। just because you are interacting them with the first time, they will maximum share with you one contact, but still they have 9 contact left। तो रिलेशनशिप बढ़ते रहेगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, आप सबसे एक कॉन्टैक्ट लोगे, यहाँ पे यू विल आस्क फॉर रिफरल रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन। नाउ 100 आपका नेटवर्क था, एक आपने मांगा, आपको कितना मिल गया कॉन्टैक्ट पूरे साल में? 100।
अब क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे अगर आपने नेट जिससे रेफरल मिला उसको मीट किया, मीटिंग हुआ, आपने फॉलोअप किया, क्लोज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये जो कॉन्टैक्ट है वापस से ऐड होके आपके नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। यानी कि साल के एंड में आपके पास 100 पुराने और प्लस 100 रिफर किए हुए लोग ऐड हो जाएंगे और आपका नेटवर्क बन जाएगा 200 लोगों का। ओके, थोड़ा नेट स्लो है, वेट अ मिनट। आपका नेटवर्क बन जाएगा कितने, 200 लोगों का। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है। तो जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे आपका नेटवर्क 500, 1000, 10,000 बढ़ते जाएगा। और आपके नेटवर्क में जो लोग हैं जिनके पास जो 8-10 लोगों को जानते हैं उनका भी नेटवर्क बढ़ेगा। सिर्फ आपको सही तरीके से सही टाइम पे पूछना है, वो सारा प्रोसेस ये मिशंस के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम डिजिटल पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लीड्स पे डिपेंडेंट नहीं है, हम रिलेशनशिप और अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। हमारी ऐसी पहचान है कि हम पहचान के थ्रू काम ले लेते हैं। लोग ढूंढते रह जाएंगे कि यार ये ओनर इनको कैसे मिल गया रियल एस्टेट के केस में, या ये क्लाइंट इनको कैसे मिल गया। इट्स ऑल थ्रू पहचान, इट्स ऑल थ्रू नेटवर्क, इट्स ऑल थ्रू द रिलेशनशिप जो हम बिल्ड करेंगे अपने लिस्ट के साथ, जो अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे और दुनिया भर के लोगों को अप्रोच कर रहे थे ऑनलाइन। पता नहीं उनको हमें सर्विस चाहिए नहीं चाहिए, राइट। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है। इसको आते हैं नंबर्स में भी डालते हैं। ये इमेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। इसको हम थोड़ा नंबर्स में डालते हैं। आप क्या लिखेंगे, अभी आपका करंट नेटवर्क क्या है, रफ फिगर डालिए। अगर आपने लिस्ट बना लिया तो यू नो एग्जैक्टली अभी आपका करंट नेटवर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल में जाइए, मोबाइल में जाके कॉन्टैक्ट में देखिए कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। उसमें से बहुत से आपके रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, इनको हटा के एक रफ फिगर डाल लीजिए। आई इजीली नो 400 पीपल जो मेरे नेटवर्क में है। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया, लेट मी रीचेक इट। लेट्स सी। ओके, सो यू नो 400 पीपल आर इन योर करंट नेटवर्क। इसमें से प्रोस्पेक्ट नेटवर्क कितने हैं। प्रोस्पेक्ट नेटवर्क क्या हो गया, ये मैंने नया ऐड किया है। ये लोग, आप तो कई लोगों को जानते हो लेकिन जो जिससे आपको काम मिलना है वो कितने लोग हैं। आपके क्लाइंट नहीं, बाय द वे ये आपके क्लाइंट नहीं बने। मतलब यू नो आर्किटेक्ट, यू नो रियल एस्टेट एजेंट जिनके साथ आपका टाइप नहीं हुआ है, यू नो शॉप ओनर जिनके साथ आपका बिजनेस नहीं हुआ है पर आपका बिजनेस आगे हो सकता है, यू नो HR हेड, यू नो हाई नेट इंडिविजुअल जिनके साथ अभी आपका काम नहीं हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं, प्रोस्पेक्ट नेटवर्क। क्योंकि यहाँ से ही अब क्लाइंट आपके कन्वर्ट होंगे और यही चीज आपको भरते जाना है यहाँ से इस मेथड के थ्रू, राइट। तो फिलहाल समझिए कि 50 लोग हैं दूर दूर से जिसको आप डायरेक्टली जानते हैं, पर अभी वो आपके क्लाइंट नहीं है। फिर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट कितने हैं, पुराने क्लाइंट कितने हैं जिन्होंने आपसे सर्विस लिया है, उनका लिस्ट बनाना है आपको। बिकॉज ये आपको इजिली रिफर कर सकते हैं, इन्होंने आपका सर्विस लिया, दे नो द क्वालिटी ऑफ सर्विस, एंड आप उनको पूछेंगे तो दे विल 100% रिफर यू। देन यू ऑल्सो हैव अ सोशल मीडिया नेटवर्क। आजकल लोग फेस टू फेस कम मिलते हैं, जैसे हम भी मिल रहे हैं, लाइक दिस, आई एम योर सोशल मीडिया नेटवर्क। मैं और आप बहुत से लोगों से फेस टू फेस मिले नहीं है, राइट। बट यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट इन मी कि दीपक को मैं कॉल करूंगा तो वो ऐसे डील करेगा, वो ये सर्विस करेगा या यहाँ पे मुझे हेल्प कर सकता है, राइट। सो आई कम अंडर योर सोशल मीडिया नेटवर्क। यू कैन यूज माई नेटवर्क ऑल्सो, यू कैन यूज अदर पीपल्स नेटवर्क, बशर्ते हमारी नेटवर्किंग और हमारा ट्यूनिंग से बना रहे, राइट। सो यू नो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया, नॉट फॉलोअर्स नॉट सब्सक्राइबर्स, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिसको आप नाम से जानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी आप नहीं, वो आपको नाम से जानते हैं, दैट इज योर नेटवर्क, राइट। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने एजेंट से रियल एस्टेट एजेंट के केस में अगर आपने 5 लोगों से ऑफिशियल पार्टनरशिप किया तो वो यहाँ पे लिख दीजिए 5। नेट स्टिल नॉट वर्किंग, ओके, लेट इट बी। थोड़ा सा नेट का इश्यू है, आई एम नॉट एबल टू एडिट, व्हाई आई डोंट नो। ओके, तो 5 लोग हो गए आपके, 5 लोग हो गए आपके पार्टनर्स। फिर से मैंने रिफ्रेश किया है, लेट्स सी। ओके, सो 5 लोग हुए आपके पार्टनर्स। टोटल कनेक्शंस इज 520।
अभी आपका बहुत छोटा नेटवर्क है, पूरा मिलाएंगे टोटल 520 समझो आपका कनेक्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपके कनेक्शन के कनेक्शन में कितने लोग हैं, आपके पास 500 लोग हैं तो उनके पास भी 500 लोग होंगे, उनके भी रिलेटिव है, उनके भी फ्रेंड्स फैमिली सब है, उनके साथ आपको सबके साथ काम नहीं करना है। आइडियल क्लाइंट्स आपके पास, जो आइडियल क्लाइंट्स है वो एटलीस्ट उनके पास 5 से 10 होंगे। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ऑलमोस्ट 2600 लोग हैं अभी आपके पास, जिनको डायरेक्टली आप अप्रोच करके रिलेशनशिप बिल्ड करके बिजनेस ला सकते हो। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। आजकल लोग यू नो पोस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब सरफेस लेवल पे है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कितने रील्स, कितने पॉडकास्ट, कितने आर्टिकल्स पढ़ के आपने क्लिक किया है और आपने बिजनेस क्लोज किया है, आपने खुद ने, फॉरगेट अबाउट योर क्लाइंट। कहाँ पे आपने देखा है कि अच्छा एक किसी ने अच्छा आर्टिकल लिख दिया, मैं उस पर क्लिक करके और वो कंसल्टेंट के पास जाके मैं उससे बिजनेस करूंगा। कहाँ पे ऐसे आपने किसी सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट सुन लिया जहाँ पे आपने क्लिक किया लिंक पे और जाके आपने उसके सर्विसेज ले ली, ढूंढा वो कहाँ पे काम करता है, राइट? दिस इज गुड फॉर ब्रांडिंग, नॉट फॉर सेल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स। जब आप सेल्स कर रहे हो तब ये प्रोसेस आप खुद नहीं करो तो व्हाई यू एक्सपेक्ट दैट योर क्लाइंट विल आल्सो यूज द सेम प्रोसेस? So if you have enough sales, you have enough budget, do all type of activities for branding, right? पोस्टर्स लगवा सकते हो, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर सकते हो, बट सेल्स का अगर प्रॉब्लम है तो फोकस ऑन द नेटवर्क एंड द रिलेशनशिप विच यू हैव एंड द रिलेशनशिप विच यू आर गोइंग टू बिल्ड। सो अब मेरे पास पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स है 2600 लोगों का, राइट? ये 2600 लोगों के माइंड में मुझे टॉप ऑफ माइंड बने रहना है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। उनको आपका नाम, आपका काम पता होना चाहिए। उनको आप एजुकेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। सेलिंग नहीं करना है गलती से भी। यहाँ पे हम अपने नेटवर्क को सेल नहीं कर रहे हैं, हम सेल यहाँ पे कर रहे हैं जो हमारे क्लाइंट है, जिनको हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस की जरूरत है, राइट? इस पे और आगे जब हम डिस्कस करेंगे दूसरे मिशन पे, आई टेल यू कि करना कैसे है और अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी। जैसे हमारा मिशन नंबर 3 था, आई गेस, लेट मी चेक, जहाँ पे हम ट्रस्ट बिल्ड करने वाले हैं, राइट? नॉट हियर। हाँ, मिशन नंबर 3, ट्रस्ट बिल्डिंग। तो जब यहाँ पे बात आती है कि आपको वो एज ए एक्सपर्ट, एज एन अथॉरिटी ले आपके फील्ड में, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वहां पे कैसे करना है वो हम अपने अलग अलग मिशन में, तो ये पूरा काम है, ये अलग अलग मिशन में आप ये पूरा ऑटोमेटिकली कवर कर जाओगे। उसके बाद हाउ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट एबल टू एडिट, ओके, लेट इट बी। कम्युनिकेट कैसे करना है, हर नेटवर्क के साथ महीने में एक बार नेटवर्क करना है, क्या बात करनी है, विदाउट सेलिंग क्या बोल सकते हैं, किस चीज पे बात कर सकते हैं, वो सब स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग विल गिव यू इन द डिफरेंट डिफरेंट नेट। जब हम बात करेंगे नेटवर्किंग कैसे करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कैसे डील करना है, सोशल मीडिया पे कैसे करना है, ऑल एवरीथिंग विल गिव यू दैट टाइम। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, everything boils down to action and execution. Okay, everything boils down to this thing. Now at the end of the session आपको पता है कि मुझे सेल्स कितना करना है नए साल में, वो आपको क्लियर है। आपको मीटिंग्स कितनी करनी है वो आपको क्लियर है, दूसरा नंबर आपको मिल गया, राइट? और आपको रिफरल कितना लगेगा वो क्लियर है। आपको कितने रिफरल्स लगेंगे? 63। यू नीड 63 रिफरल सेल्स। दिस इज योर सेल्स अमाउंट, जो हमने आज प्रॉमिस किया था कि हम ये 3 नंबर्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे ये वाला, आपका नेटवर्क कितना है वो आपको मालूम पड़ गया, कितनी मीटिंग्स आपको करनी वो मालूम पड़ गया, और कितना रेफरल आपको चाहिए वो मालूम पड़ गया, राइट? नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू डोंट पुट एवरीथिंग इनटू अ सिस्टम, अपने डेली रूटीन में आप नहीं डालोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बीइंग मोस्ट ऑफ अस प्रोप्राइटर्स, लाइक people who are taking all the calls in our business, it's very important that we schedule our entire day in a most productive way. तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम फॉलोअप भूल जाते हैं। फॉलोअप इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो दिनचर्या का काम नहीं है। हम ब्रश करना नहीं भूलते, हम नहाना नहीं भूलते, वो दिनचर्या का काम है। तो अगर हम बिजनेस में ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें वो दिनचर्या का, जो अपना डेली शेड्यूल का पार्ट बना देंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। सो फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव अ वेरी सिचुएशन जहाँ पे वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, सब फायर फाइटिंग करना है, कुछ चीज मैंने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया, कुछ खराब हो गया, दोज आर एक्सेप्शनल थिंग्स। बट व्हाट अबाउट द डिफॉल्ट डेज?
डेज जहाँ पे आपके पास पावर है खुद से काम करने का, कोई क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेल्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डे फॉर दैट, शेड्यूल फॉर दैट पर्टिकुलर डे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप, ये मैं करता हूँ, यू कैन मेक योर ओन बेस्ड ऑन योर बिजनेसेस, राइट। कोई बाहर गांव क्लाइंट्स को सर्व करता है तो उनका डे नाइट का शिफ्ट चेंज हो जाएगा, बट मेक अ शेड्यूल, टेक अ पेन एंड पेपर एंड फिनिश दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेशन, ओके। सो 9 से 10:30 सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में आई बुक मीटिंग्स, आस्क फॉर रेफरल्स, इंट्रोडक्शन एंड रेफरेंसेस। जब तक मैं रेफरल रेफरेंसेस नहीं पूछूंगा, मुझे आने वाले दिनों के लिए मिलेगा नहीं कोई, मीटिंग्स मेरे शेड्यूल नहीं होंगे। मैं मीटिंग करूंगा किससे, मीटिंग करूंगा नहीं तो मेरा सेल्स कैसे होगा। सो सबसे पहला एवरी डे रीच योर ऑफिस, बुक मीटिंग्स। किससे करना है मीटिंग्स, कहीं बाहर जाना है नहीं जाना है, अपने नेटवर्क से करना है, कॉल करना है, फोन पे बात करना है, राइट। क्या बात करना है वो हम आगे आगे जब इसमें करेंगे, राइट, डिस्कस। तो वहां पे मीटिंग्स बुक करना है। मीटिंग्स बुक करने के बाद 10:30 से 11 आंख बंद करके 10:30 से 11 फॉलोअप होगा। आपको कहीं लिखने की जरूरत भी शायद ना पड़े, हम सीआरएम में वैसे यूज करते हैं, एक्सेल में अपडेट करते हैं, फॉर यू फॉर योर टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। बट जैसे ही 10:30 से 11 होगा, अरे इनसे रेफरल सॉरी फॉलोअप करना था, तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि वो माइंड में एक मेमोरी बन जाएगा आपकी, 10:30 से 11 में फॉलोअप करता हूँ। बिकॉज जब तक फॉलोअप नहीं करोगे तो रेफरल भी नहीं मिलेगा, मीटिंग्स भी कंफर्म्स नहीं होंगे। किसी ने आपको कल का मीटिंग दे दिया, परसों का दे दिया, उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, आप कंफर्म करोगे, राइट, कि अब अभी मीटिंग, तो ये सब फॉलोअप के सेक्शन में आता है। आई टेल यू द प्रॉब्लम व्हाट यू विल फेस। सो एवरी 1 आवर का आई हैव अ ब्लॉक। सो मे बी फॉर एग्जांपल मैंने 5 मीटिंग्स बुक करे, ओके, स्टिल नॉट एबल टू एडिट, नो प्रॉब्लम। थिंक ऑफ अ डॉक्टर जिन जो पूरे दिन में से 5 क्लाइंट ले सकता है, 5 पेशेंट्स ले सकता है। तो 5 लोगों ने बोला सर डॉक्टर साहब कल हम आपके पास आ जाएंगे, 5 में से 3 लोग नहीं आए। एंड मोमेंट पे जस्ट फॉलोअप नहीं हुआ उनके स्टाफ के थ्रू कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उन्होंने बोला हमारे बच्चे का कुछ एडमिशन था, ट्रैफिक था, ऑफिस का काम था, 3 लोग नहीं आए। एज अ डॉक्टर मेरे पास कैपेसिटी था 5 लोगों से मिलने का, 5 सेल्स करने का, पर मैं 2 ही कर पाया, 3 मेरा लॉस हो गया, 3 लोगों से मैं नहीं मिल पाया। और एंड मोमेंट पे बहुत सारे, आपको भी एग्जाम फील हुआ होगा, एंड मोमेंट पे बहुत सारी मीटिंग्स कैंसिल होती हैं, बहुत सारी मीटिंग कैंसिल होती हैं, यू कांट अवॉइड दैट। सो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा कल के लिए आज, कि हमारी मीटिंग्स पक्की है कि नहीं, वो सारी चीजें, और भी अगर कुछ नोट आपने डाला है, सो दैट आपका डे प्रोडक्टिव रहे, राइट। 3 मीटिंग फिक्स हुआ है तो आप 4 करके रखिए, एक्स्ट्रा करके रखिए, कि एक आदमी कोई बैकअप करेगा तो भी यू हैव इनफ नंबर ऑफ मीटिंग्स इन अ डे। देन फ्रॉम 11 to 11:30 यू हैव टू नर्चर एंड गिव टू योर कम्युनिटी। ये हम जब बात करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, नेटवर्क्स वगैरह पे, आप डायरेक्टली इनको फोन करके आप इनसे लीड्स लेंगे, आप इनसे रेफरल मांगेंगे, आपको एक आदमी भी रेफरल नहीं देगा। एक आध ने दे दिया तो दे दिया बेस्ड ऑन योर सालों का रेफरेंस, बट दूसरी बार नहीं देगा वो, बिकॉज आपने उनसे मांगा है, उनको कुछ दिया नहीं है। सो 11 से 11:30 हमारा समय होगा लोगों को सोसाइटीज में रेफरल्स देने के लिए, नर्चरिंग करने के लिए, उनको कुछ अपने तरफ से देने के लिए, ताकि वो आप उस चीज को रेसिप्रोकेट करें और हमें रेफरल्स और सेल्स दें, राइट। जस्ट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ये, आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। रेफरल में देना क्या है, मे बी कनेक्शन शेयर करेंगे, कोई आर्टिकल शेयर करेंगे, कोई इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करेंगे, हमारे कंपनी का ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, इंट्रोडक्शंस, वीडियोस नहीं शेयर करेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर क्लाइंट के लिए जो आपका नेटवर्क है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। जैसे आई एम अ डॉक्टर, इफ आई कीप सेंडिंग यू डेंटिस्ट का आर्टिकल, आप बोलोगे क्या जरूरत है, क्यों भेज रहे हो मुझे ये सब, राइट। हमारे ऑफर चल रहा है, आप एक दांत निकालोगे दूसरा दांत फ्री है, डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। सो आप उनको ऐसा क्या दोगे जो उनके लिए वैल्यूबल है, नॉट आपके लिए। ये आधा घंटा यू विल थिंक ऑफ अदर्स इन योर नेटवर्क, ताकि वो आपको एक व्हाट वी से उस लेवल पे रखे कि आप जब उनको फोन करके कुछ पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। देन 11:30 से 5:30 तक टेक योर लंच, गो फॉर मीटिंग्स। आपने जो मीटिंग्स बुक करी है, ऑपरेशंस पे ध्यान दीजिए, डिलीवरी पे ध्यान दीजिए, ये आपका जोन है। आपको जो करना है, हर बिजनेस का अलग अलग टाइम होता है, टाइम जोन। आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन में फोकस करना चाहते हैं, क्लाइंट डिलीवरी में, हर एक चीज जो भी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस है, दिस इज योर कोर टाइम।
पर सुबह मीटिंग बुक करना, फॉलो करना और नर्चर करना वेरी इंपॉर्टेंट। इसका साइक्लिकल इफेक्ट पड़ता है। एंड बिफोर क्लोजिंग द डे 5:30, 5:30 या 6, 6:30 जब भी आप अपना ऑफिस बंद करते हैं, अपडेट ऑल द एक्टिविटी जो आपने दिन में किया है इनटू अ सीआरएम, ताकि अपने माइंड से वो सब निकाल के कहीं सिस्टम में लिख लीजिए, ताकि अगले दिन आप फ्रेश स्टार्ट कर सकें। आपको ऑफिस का इसको कॉल करना था, कल इनको मिलना था, वो सारी चीजें आप घर पे ना लेके जाएं। तो आपका घर का मेमोरी अलग है, ऑफिस का मेमोरी अलग है। और योर ब्रेन इज मेड टू कीप गुड मेमोरीज इन योर माइंड। ये फॉलो वगैरह सब सिस्टम में डाल दीजिए। नो नीड टू यूज योर ब्रेन फॉर दैट। तो ये प्रोसेस, ये डेली शेड्यूल आप करेंगे। और मैं जब इसमें बात करूंगा यहाँ पे रिफरल कैसे लाना है, अभी तो हम अपने आप को सिर्फ तैयार कर रहे हैं, राइट। जब हम रिफरल कैसे लाना है नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वहां पे सब स्क्रिप्ट, 1 सेकेंड, वहां पे सब स्क्रिप्ट, देयर इज समथिंग वियर्ड हैपनिंग विद माय लैपटॉप। स्क्रिप्ट के साथ साथ पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। आई शो यू लाइव हाउ आई डू इट, यू हैव टू जस्ट कॉपी एंड रिप्लिकेट। आपके बिजनेस के हिसाब से 19-20 आप चेंज कर सकते हैं। So this was the intention of doing this session, to have a clarity to each and every member's mind, so that they move with a purpose, not with a confusion. Okay, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, just type in the chat if you have any question, right? I'll pause this recording